قبلہ سے مستفید ہوں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ معرفت امام زمانہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، امام کا ظہور بھی قریب ہے، ہم سب دعاگو ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے تاکہ امام کا جو انتظار ہے، ہر مومن کی جو دعا ہے وہ اس کا سلسلہ رکے اور امام کا ظہور ہو تو ہم امام کی زیارت کر سکیں۔ اس کی سلسلے کی کڑی یہ آن لائن کانفرنس ہے جس میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مومنین، اور ہم سب آپ کے منتظر ہیں کہ اپنا حصہ اس کانفرنس میں ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے رخانِ سندھ نجف اشرف کا شکر گزار ہوں کہ بندہ حقیر کو خدمت کا موقع دیا۔ تمام مومن و مومنات، تمام عالم اسلام کو ولادت منجی بشر حضرت قائم آل محمد امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ گفتگو جو عنوان بندہ حقیر کو دیا گیا ہے، امام زمانہ کے نواب خاص۔ نواب خاص یا ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے نواب اربع، ان اشخاص کو کہا جاتا ہے کہ جو غیبت صغرا کے دوران اس زمانے میں امام اور شیعان علی یا دوسرے افراد کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔ وہ باوقا وہ معتمدین اشخاص جو امام کی طرف سے بالترتیب ایک کے بعد ایک معین ہوئے اور اپنی خدمات کو، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ سوال یہ ہے کہ ان خواص کی، ان نواب کی، ان نائبین کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام زمانہ کی غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے، متعدد روایات اس پر موجود ہیں کہ تا قیامت خدا کی زمین خدا کی حجت سے خالی نہیں رہی۔ کوئی نہ کوئی حجت خدا کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے اس حجت کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں اور اپنے فرائض کو انجام دے سکیں۔ انہی فرائض کی انجام دہی کے لیے جب خدا کی حجت آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت شروع ہوئی تو اب امام پر ضروری تھا، خدا پر ضروری تھا کہ لوگوں سے روابط کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نائبین کا سلسلہ جاری کرے۔ لہذا امام کی طرف سے ایک کے بعد ایک، دیگر کا دیگر نائب کا سلسلہ شروع ہوا، اور امام نے اپنی توقیعات خطوط کے ذریعے سے ان نائبین کو کا تعین کیا، ان کو منتخب کیا، ان کو مقرر کیا۔ ان نائبین میں جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے، 4 خاص نائبین ہیں جو امام کی طرف سے مقرر ہوئے اور امام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگوں کے سوالات و جوابات، ان کے مسائل امام تک پہنچا کر اس کا حل لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ غیبت صغرا کے زمانے میں جو نائبین کا سلسلہ ہے، نواب کا سلسلہ ہے، یہ غیبت چونکہ 70 سال پر محیط ہے، لہذا ہر ایک نائب کی ایک مدت نیابت ہے کہ جس میں اس نے اس نیابت کے فرائض کو انجام دیا۔ پہلے نائب جو امام زمانہ کی طرف سے منتخب ہوئے، مقرر ہوئے، عثمان بن سعید عمری۔ ان کا نام رجال، کتب رجال، منابع رجال میں اسی الفاظ کے ذریعے سے ہے کہ ان کا نام عثمان بن
सईद है। बहुत कम मसादिर हैं कि जिसमें हाफिज इब्न अम्र के नाम से भी आपको याद किया गया। आपकी विलादत के बारे में कोई तारीफ नहीं है कि कब आपकी विलादत हुई, लेकिन बाद रिवायात के मुताबिक मिलता है कि आप 11 साल की उम्र से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के घर में खादिम के इन्वान काम किया करते थे और वहीं से इमाम के मोतमिद और बावफा असहाब में शुमार हुए। आपके अलकाबात में अमरी, सम्मान, ज़य्यात, अस्करी ये अल्फाज आपके अलकाबात में मिलते हैं। सम्मान और ज़य्यात क्योंकि वक्त ऐसा था, जालिम हुकूमत थी, इमाम तक हुक्म पहुंचाने के लिए, मसाइल को पहुंचाने के लिए यही जैतून और समन घी के ज़रूफ और बर्तनों में मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों को, अमवाल को, पैगामात को जमा करके इमाम तक पहुंचाया करते थे। आपकी वफात मुतवक्की आप इसके बारे में 2 कौल बयान होते हैं। एक कौल के मुताबिक इल्म रिजाल के अक्सर उलमा जिसको बयान करते हैं कि आपकी वफात 267 हिजरी कब्ल हुई, यानी आपकी नयाबत का सिलसिला 6 या 7 साल पर मोहित है। एक और तौक़ी से मालूम होता है कि आपकी वफात 280 हिजरी में हुई। मुद्दत इमामत 6 या 7 साल। इसके अलावा उस्मान इब्न सईद इमाम ज़माना के अलावा इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी के खास असहाब में आपका शुमार होता है और आपने इमत में बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। मोती इमाम होने का, फरमाबरदार इमाम होने का एक अच्छा फरीज़ा अंजाम दिया। इसके बाद नाइबीन का सिलसिला जारी रहा और दूसरे तरतीब के लिहाज से जो नाइब खास इमाम ज़माना के हैं वो अबू जाफर मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी। ये पहले नाइब उस्मान बिन सईद के फर्जंद हैं मोहम्मद बिन उस्मान। और इमाम ज़माना की तौक़ी कि जब आपके वालिद गिरामी की वफ़ात हुई तो इमाम ज़माना की तरफ एक ख़त मौसूल हुआ कि जिसमें इमाम ने आपके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत और आपकी तकर्रुरी को बयान किया। शेख तूसी अलैहिर्रहमा अपनी किताब अल-गैबा में एक रिवायत नकल करते हैं जिसके मुताबिक मोहम्मद बिन उस्मान और उनके वालिद उस्मान बिन सईद दोनों को इमाम हसन अस्करी के मोरिद एतमाद और सिका समझते हैं कि इमाम हसन, ये दोनों वालिद और फर्जंद सिका है इमाम हसन अस्करी के नज़दीक। इस रिवायत में इमाम हसन अस्करी ने तसरीह के साथ बाप और वालिद, बेटे की, वालिद और फर्जंद की तायीद की है। दोनों के बारे में कहा है कि ये दोनों जो कुछ पहुंचाते हैं वो हमारी जानिब से पहुंचाते हैं। ये दोनों जो कुछ भी कहते हैं इनका कौल फेल गोया हमारा कौल और फेल है। ये जो कहते हैं वो हमारी तरफ से। अलकाबात में आपके कूफी, असदी और अपने वालिद गिरामी की तरह सम्मान, अस्करी क्योंकि जंगजू थे, ये अलकाब में आपके मिलता है। वफात आपकी 305 हिजरी में आपकी वफात हुई। मुद्दत नयाबत 40 साल रिवायात के मुताबिक मिलता है कि मोहम्मद बिन उस्मान की मुद्दत इमामत 40 साल थी। इसके बाद जब मोहम्मद बिन उस्मान का इंतकाल हुआ, तीसरे नायब की तकर्रुरी और तीसरे नायब का तयन हुआ। तीसरे नायब इमाम ज़माना के खास जिनको मुकर्रर किया अबुल कासिम हुसैन इब्न रूह नौबख्ती। ये वो शख्सियत है कि जो इमाम की तरफ से नाइब खास
मुकर्रर हुए। आप इमाम हसन अस्करी के असहाब और दूसरे नाइब मोहम्मद बिन उस्मान के मोतमिदीन में से थे, उनके खास चाहने वालों में से थे, उनके खास वकला में आपका शुमार होता है। मोहम्मद बिन उस्मान ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम हुक्म इमाम ज़माना से इमाम से हुसैन बिन रूह को नाइब खास मुकर्रर किया। हुसैन इब्न रूह की नियाबत के बारे में इमाम ज़माना की तायीद और तौकीद से इमाम फरमाते हैं, हम इन्हें हुसैन इब्न रूह को जानते हैं, इनकी शख्सियत को जानते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा इन्हें तमाम अच्छाइयों से आगाह फरमाए और इन्हें अपने लुत्फ व करम से खुश हो खुर्रम रखे। इनकी दरख्वास्त से आगाह हूँ और उनकी दी गई जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निपटाने की उम्मीद रखता हूँ। वो हमारे पास ऐसे मकाम व मंजिलत के हामिल हैं जो उनकी खुशनुदी का बाइस बनेगा। खुदा उन पर अपने फजलो करम की फरावानी मरहमत फरमाए। हुसैन इब्न रूह की कुनियत अबुल कासिम आपके अलकाब में नौबख्ती, रूही और कुम्मी बाज कुतुब में मिलता है। तो 26 हिजरी में हुई और आपकी मुद्दत नियाबत 21 साल बनती। 21 साल तक आप इमामत नियाबत इमाम के फराइज को अंजाम देते रहे और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी, आखिरी नियाबत, आखिर नाइब जो अबुल हसन मोहम्मद इब्न समरी हैं, हुसैन इब्न रूह नौबख्ती के बाद ये इमाम के चौथे और आखिरी नाइब खास हैं। अली बिन मोहम्मद समरी एक दीनदार शिया खानदान से ताल्लुक रखते थे, एक बेहतरीन घराने खानदान के चश्मो चिराग थे। इनका खानदान आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत गुजारी के हवाले से मशहूर था। शेख तूसी ने इन्हें इमाम हसन अस्करी के असहाब के जुमरे में शुमार किया। खुद मोहम्मद बिन अली समरी के बकौल इमाम हसन अस्करी ने मुझे लिखा कि तुम्हें अनकरीब तुम्हें गुमराह करने वाले फितने पेश आएंगे, लिहाजा जो फितने तुम्हें पेश आने वाले हैं उनसे होशियार रहो और उनसे अपने आप को बचाए रखो। आपकी कुनियत और लकब में अबुल हसन, आपकी कुनियत और लकब समरी के नाम से आप मुलक्कब हुए। ये इमाम के आखिरी नाइब और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौक़ीर, जिसमें इमाम ने नौबख्ती के बारे में बयान फरमाया। मनकुला रिवायत के मुताबिक हुसैन इब्न रूह ने इमाम ज़माना के हुक्म से अबुल हसन समरी को अपना जानशीन बनाया और जब ऐलान किया हुसैन इब्न रूह नौबख्ती ने, तो तमाम शियाने आइम्मा पैरोकार अहले बैत ने बगैर किसी इख्तिलाफ के हुसैन मोहम्मद बिन अली समरी की नियाबत को कबूल किया। और आखिर में इमाम ज़माना ने जब मोहम्मद बिन अली समरी का आखिरी वक्त था तो आपकी वफात की खबर दी और इसके साथ ही इख्तिताम नियाबत खासा को बयान किया और गैबत कुबरा का ऐलान।